Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 9. Welcome to your biology class. The topic which we are going to study is related to chapter number 4, cells and tissues, on page number 59 and 60 of your textbook. These topics are actually the remaining cellular structures, as you have studied about the cell wall and cell membrane in our previous class. Now the remaining cellular structures which we are going to discuss today are cytoplasm and cytoskeleton. Third cellular structure of cell is called cytoplasm. The meaning of cyto is cell and plasm means liquid. Plasm means liquid. So what is the meaning of cytoplasm? Liquid of cell is called cytoplasm. So in this topic, first I am going to describe that what is cytoplasm, where is it located, what is the chemical composition of cytoplasm, as well as the functions of cytoplasm will also be discussed in this topic. So first you must know that what is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly like. साइटोप्लाज्म कैसा लिक्विड है? ये सेल का लिक्विड है. और कैसा होता है ये लिक्विड? इज़ द सेमी विस्कस. सेमी विस्कस, नीम गाढ़ा जिसे कहते हैं, शहद की तरह गाढ़ा, विस्कस लेकिन इतना नहीं जितना शहद होता है. सेमी विस्कस मीन नीम गाढ़ा, कम गाढ़ा, और साथ साथ सेमी ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर होता है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं होता. इसकी क्लियरिटी में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई धुंधलापन होता है. सो सेमी विस्कस मीन नीम गाढ़ा, ना ज़्यादा ना कम, नीम गाढ़ा. और इसी तरीके से सेमी ट्रांसपेरेंट, नीम शफ़ाफ़. नीम शफ़ाफ़ यानी ना ज़्यादा क्लियर और ना ही ज़्यादा धुंधला. तो इस तरह का एक सब्सटेंस है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is the cell membrane, and nuclear envelope. So first you have to write down what is cytoplasm. It is the semi-viscous and semi-transparent substance. Then the next heading is related to its location, where it is located. So cytoplasm is present, or cytoplasm is located between, is present या located कुछ भी लिख लें आप, between plasma membrane और cell membrane. दोनों लिख सकते हैं, plasma membrane और cell membrane, and nuclear envelope, that is the nuclear membrane. nuclear envelope कहाँ पाया जाता है साइटोप्लाज्म का लिक्विड? साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान पाया जाता है. जैसा कि अगर आप कोई भी सेल ले लें, जैसे एनिमल सेल ले लीजिए, तो एनिमल सेल में दरमियान में आपके सामने ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अतराफ़ में, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री होती है, एंड दैट बाउंड्री इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप. nuclear envelope, and around it this semi-viscous, that around the nucleus semi-viscous and semi-transparent substance or liquid is present, which is called cytoplasm. So outside the cell you can also find out cell membrane. So what is the exact location of cytoplasm? It is present in between
न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, अतराफ में, सराउंडिंग द न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। नेक्स्ट हेडिंग विच वी हैव टू राइट इज़ रिलेटेड टू द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं जो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो हेडिंग इज़ केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन से मुराद वो कौन से केमिकल्स हैं जो साइटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं। सो केमिकल कॉम्पोजिशन मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर, इसमें सबसे अहम जो आपका सब्सटेंस है वो वाटर है। सो इट कंटेन्स वाटर विच normally in turn contain, or in which different other molecules are present, different compounds are present, in which organic molecules are mainly present, organic molecules, and these organic molecules or compounds are proteins, such as proteins, carbohydrates, lipids. These are some of the organic molecules. Along with inorganic molecules are also present. Inorganic molecules or compounds. And these inorganic molecules include salts, especially salts, different salts or minerals. And these all substances, that is water, organic molecules which are containing protein, carbohydrate and lipid, and inorganic salts, are completely or partially submerged or partially dissolved, are completely or partially dissolved. ये साइटोप्लाज्म के अंदर मुकम्मल तौर पे क्या होते हैं, मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे। पार्शली किसे कहते हैं, आधा हिस्सा, यानी मुकम्मल तौर पे जो ना हो। कंप्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर हल होना। कुछ इसमें से सब्सटेंसेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में हल शुदा हालत में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जबकि कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो पार्शली डिज़ोल्व होते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व नहीं होते। Now next heading of cytoplasm is function. Function कि साइटोप्लाज्म सेल के लिए क्या काम अंजाम देती हैं, या साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड है वो क्या काम अंजाम देता है। सो साइटोप्लाज्म नॉट ओनली प्रोवाइड स्पेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनल्स। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी कि ये क्या करता है, प्रोवाइड स्पेस। Cytoplasm provides space for the functioning of different organelles which are present in it. Functioning of organelles, मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो इसमें मौजूद होते हैं उनके काम करने के लिए जगह देना, ये सबसे अहम काम है इसका। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जो कि मैंने 9 तकरीबन आपको ऑर्गेनल्स की तादाद बताई थी, जिनमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स एंड सो मैनी अदर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। और इन ऑर्गेनल्स के काम करने के लिए साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइटोप्लाज्म इनको प्रॉपर अपने अंदर जगह देता है, और इस जगह देने की वजह से ही सेल का जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, वो अंजाम पाती हैं। एंड इट ऑल्सो एक्ट एज, साइटोप्लाज्म का दूसरा काम, एक्ट एज द साइट फॉर, अगेन ये एक जगह प्रोवाइड कर रहा है, प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, साइट्स फॉर वेरियस बायोकेमिकल और डिफरेंट बायोकेमिकल, जिन्हें अभी मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बहुत सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शन सेल्स में हो रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है वो कौन सी है, वो साइटोप्लाज्म है। सो इट एक्ट एज अ साइट्स फॉर द वेरियस और डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन इज़, एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 2 दे देते हैं, बल्कि
ग्लाइकोलिसिस। एक हमारे पास एग्जांपल आती है यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस। व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पिरेशन विच अकर इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस कैसा अमल है? ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विच एक्चुअली टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी सेल के सांस लेने के अमल में ग्लाइकोलिसिस का अमल होता है, जिसके नतीजे में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और टूटने के बाद ही अपने रिस्पेक्टिव सब्सटेंसेस में, जैसा कि पायरुविक एसिड और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर सांस लेने के अमल में रिलीज़ हो जाती है सेल से। सो ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस, सो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस कहाँ होता है ये? इन साइटोप्लाज्म। तो ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये एक एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल में आपके पास फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जो कि कौन से सेल्स में होता है? सो फोटोसिंथेसिस क्या है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस इज़ बेसिकली द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स या फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट सेल्स, food making process, and during this food making process what happens, क्या होता है कि ये भी आपके एक ख़ास किस्म के जो है वो ऑर्गेनल में होता है। जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस का अमल जो है वो आपके जिस ऑर्गेनल में होता है इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का अमल जिन ख़ास ऑर्गेनल्स में होता है उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड्स की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट्स। और क्लोरोप्लास्ट्स जो हैं या प्लास्टिड्स कहाँ पाए जाते हैं? ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। लिहाजा साइटोप्लाज्म क्या करते हैं या क्या करता है ये लिक्विड सेल का? ये उन तमाम ऑर्गेनल्स के लिए ना सिर्फ ये कि उनके काम करने के लिए, बल्कि साथ साथ बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल के अंदर उनको जगह देने का काम करता है। उनके लिए एक साइट है, एक काम करने की जगह है जहाँ पर वो रहते हुए या जहाँ पर मौजूद होते हुए वो मुख्तलिफ़ किस्म के काम अंजाम देते हैं, चाहे उनमें सांस लेने का अमल हो यानी सेलुलर रिस्पिरेशन का अमल हो, या फोटोसिंथेसिस यानी फूड मेकिंग प्रोसेस हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन बनाने का अमल हो। जितने भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एनाबॉलिक प्रोसेसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, जिन्हें हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म भी कहते हैं, वो सब के सब आपके साइटोप्लाज्म में ही अंजाम पाते हैं। So cytoplasm plays an important role not only in providing space but also acts as site for metabolic reactions. Now fourth type of cellular structure or cellular component of the cell is called cytoskeleton. So this is the last structure which we are going to discuss in this lesson. Cytoskeleton, it is the last cellular structure as well. So cytoskeleton, in which the cyto means cell and skeleton means framework of some structures which hold the cell. स्केलेटन से मुराद इस तरह से ले लें कि स्केलेटन क्या है? स्केलेटन जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बोन्स और कार्टिलेजेस होती हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एक आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारी बॉडी को सपोर्ट मिल सके, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को प्रोटेक्शन मिल सके, या हमें मूवमेंट में हेल्प मिल सके। तो जिस तरह स्केलेटन हमारी पूरी बॉडी को एक तरीके से मदद करता है, सहारा देता है, चलने में या हरकत करने में मदद देता है, इसी तरह साइटोस्केलेटन का मतलब ये है कि सेल के अंदर भी उसकी शेप को होल्ड करने में, उसकी शेप को बरकरार रखने में और उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में
कुछ स्केलेटल वर्क मौजूद होता है, कुछ फ्रेम वर्क्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम साइटोस्केलेटन कहते हैं. Now, what is cytoskeleton first? So, definition first. What is cytoskeleton? Cytoskeleton क्या है? Cytoskeleton is a framework. ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है that is consisting of टू टाइप्स ऑफ यानी टाइप्स के हवाले से अगर बात करें तो टू टाइप्स होती हैं इसकी सेल के अंदर. माइक्रोफिलामेंट, network of microfilament as well as microtubules. तो साइटोस्केलेटन कैसा नेटवर्क है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनने वाला आपका नेटवर्क है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल. वन इज़ कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट एंड अदर वन इज़ कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर माइक्रो ट्यूब्यूल्स ले लें या माइक्रोफिलामेंट से शुरू कर दें. माइक्रोफिलामेंट फर्स्ट. सो माइक्रोफिलामेंट. Now for microfilament you have to divide your heading into two. First is with the composition, which is composition का मतलब ये है कि ये माइक्रोफिलामेंट कैसे मिलकर बने, किस तरह बने. सो माइक्रोफिलामेंट्स आर बेसिकली, पहले हम बात कर रहे हैं माइक्रोफिलामेंट्स की, ठीक है. सो माइक्रोफिलामेंट्स कैसे मिलकर बने? माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि थिनर होते हैं, ये पतले होते हैं, एंड दे आर मेड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन विच आर कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन. ये किससे मिलकर बने? इनकी कॉम्पोजिशन में कौन सी प्रोटीन शामिल है? एक्टिन प्रोटीन. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द प्रोटीन. Along with it you have to write down the second heading of microfilament, which is function. So what are the main functions related to the microfilament? The main function that is related to the microfilament, they help cells, ये cells की मदद करते हैं किस काम में? To change their shape. कि अगर सेल को अपनी शक्ल या सूरत या अपने जो शेप है, शेप्स, उनको अगर तब्दील करना है, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज होना है, तो इस शेप की तब्दीली को कौन होल्ड करता है, कौन कंट्रोल करता है? माइक्रोफिलामेंट कंट्रोल करते हैं. सो माइक्रोफिलामेंट्स क्या हैं? ये ऐसे साइटोस्केलेटन नेटवर्क पर मुश्तमिल आपका सेल का हिस्सा है जो कि सेल की शेप को अकॉर्डिंग टू नीड, जब ज़रूरत हो सेल को, तो वो चेंज करने में माइक्रोफिलामेंट हेल्प करते हैं. Now next thing that is related to the next type of cytoskeleton, and it is microtubules. Now what are microtubules? सबसे पहले तो हम इनको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि microtubules क्या हैं. Microtubules are also the network of cytoskeleton like microfilament, and we will divide this subheading again into two subheadings. इस हेडिंग को भी हम टू सब हेडिंग में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ फंक्शन. इसी तरीके से आप लिखिएगा माइक्रोफिलामेंट्स, जैसे आपने लिखा माइक्रोट्यूब्यूल्स आर थिकर. पहली बात तो ये कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं? ये थोड़े से मोटे होते हैं, एंड आर मेड अप ऑफ, यहाँ पर एक्टिन प्रोटीन था. माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स से याद रखिएगा कि कौन सी प्रोटीन होती है इनमें? ट्यूबुलिन प्रोटीन. प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये मिलकर बनते हैं. ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं. एंड देयर आर टू फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो फंक्शंस विल बी द नेक्स्ट हेडिंग. और फंक्शंस में सबसे पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है फंक्शंस. पहला पॉइंट है दे आर यूज्ड बाय द सेल्स टू होल्ड देयर शेप. दे मेंटेन the shape of the cell. You can also write. So they hold the shape of the cell. इनका काम क्या होता है कि ये सेल की शेप्स को मेंटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते. जिस तरह का शेप होता है सेल का उसी तरह से बरकरार रहता है, यानी उसको चेंज ना करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है. और सेकंड फंक्शन ये है
कि जैसे कि अभी आपने देखा कि दे होल्ड द शेप ऑफ द सेल, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, यानी माइक्रोफिलामेंट जो हैं उनमें थोड़ी सी ये कि थिनर होने की वजह से इतनी लचक होती है कि वो सेल की शेप को चेंज कर देते हैं। लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इतने हार्ड होते हैं, यूँ समझ लें इतने थिक होते हैं कि ये शेप को चेंज नहीं करते बल्कि उसको बरकरार रखते हैं। एंड दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इसके अलावा माइक्रो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ख़ास तौर पे उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स, कौन से होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स? लोकोमोटरी ऑर्गन्स में शामिल हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। और ये कौन से दो ऑर्गेनिजम्स हैं, या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट लेती हूँ यहाँ से कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। ठीक है, अमीबा आपने नाम भी सुना होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा का आपको पता है कि इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं उनको सीडोपोडिया कहा जाता है। नाम क्या है इनका? सीडोपोडिया। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स इनकी शेप को, क्योंकि आपको पता है ये इर्रेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी शेप को अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकता है। तो इसके अंदर अगर आपसे कहा जाए कि कौन से जो हैं वो साइटोस्केलेटल वर्क है, तो इसमें माइक्रोफिलामेंट होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यूग्लिना या पैरामीशियम की, फॉर एग्जांपल मैं बना रही हूँ अभी यूग्लिना, तो यूग्लिना में कौन से लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं? यूग्लिना के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन का नाम है फ्लैजिला। क्या नाम है इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स का? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के बाकायदा तौर पे बनाने में कौन से आपके साइटोस्केलेटन नेटवर्क काम करता है? तो ये साइटोस्केलेटन है माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसी तरीके से आपने स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा पैरामीशियम का। पैरामीशियम के इर्द गिर्द जो आपके सराउंडिंग में जो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड सीलिया। ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं सीलिया। सो दिस इज़ नॉर्मली प्रेजेंट इन पैरामीशियम। पैरामीशियम ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अगेन, एंड इसके जो मूवमेंट के ऑर्गन्स हैं उनको सीलिया कहा जाता है। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों किससे मिलकर बने हैं? इनके बेसिक यानी कंपोनेंट क्या है? इनके बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सो this is the end of today's lesson about two important cellular structures. One is cytoplasm, another one is cytoskeleton. So Allah Hafiz.